Hi, welcome. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Audible, sir. Okay. So yesterday we discussed about Council of Ministers, right? And okay, tomorrow you have the test. Sir, it is all right that we have to test tomorrow, but sir, we have not got any like video recordings and materials even. So for some people, it can be a problem, no, sir. Okay. So I postponed it to Sunday itself. So it will be better. You can attend. Sir, I'm having one exam on Sunday. Having on exam by what time? Sir, it's a skill development exam. Okay, then you can attend later on. No issue. It will be posted in the group. PDF will be there. You can attend later on. You can send me the answer. Sir, it's okay, sir. Actually, it's not in Nagpur, it's in Mumbai, but I'll try to attempt it. Okay. See, periodic tests. So, periodic test we can timing. It will be on 18. It will be on 18th July, and timing 11 a.m. Okay. So, yesterday we discussed about Council of Ministers, and we saw some of the facts related to it, like Minister of States, who all are the Minister of States, and the Deputy Prime Ministers. Deputy Prime Minister is though not a constitutional post; it's an extra constitutional post just to satisfy the ego of similar persons. So let me have a recap. I'll just quick recap. So government at the central level is headed by the Prime Minister. Then government has different ministries. So government has different ministries. These ministries again has different departments. Ministries has different departments. Departments have different wings. Wings have different branches. Different branches, they have different divisions. And divisions are further divided into sections. So the local bodies, Panchayati Raj institutions, or we can Panchayati Raj institutions, or you can say municipalities, local bodies, municipal corporations. These are the sections, smaller sections. So Prime Minister is head of the government. Prime Minister is head of the government. These ministries are headed by different individuals. Ministries are headed by different persons, different individuals. Ministries are headed by different individuals. Then department. So department directly reports to the ministries. And it happened that these ministers got occupied or got engaged in too many activities. Then the middle path has been found out here. So they introduced in between government and ministers, they introduced cabinet ministers, and department and ministers, they introduced minister of states. See, prime minister is the head of the government. Prime minister is the head of the government, and
ministers, all the ministers meet together. That is called cabinet ministers. This is a group of ministers. Group of ministers. Cabinet ministries. This is cabinet ministries. This is a group of ministers. Some ministers constitute together. And in India, this cabinet minister is the highest decision-making body. Highest decision-making body. Even it is bigger than the president of India. Highest decision-making body. Bigger in the sense, Article 74, it says that Prime Minister will act only on the aid and advice of only President. President will act only on the aid and advice of Council of Ministers. So here the President's role has been limited, has been minimized, and this Council of Ministers is responsible for suggesting everything for the President to work upon. So it means this Council of Ministers is the highest decision-making body in India, and this Council of Ministers is headed by Prime Minister. Council of Ministers is headed by Prime Minister. It means, in this sense, we can say Prime Minister has bigger or upper hand in taking decisions. Prime Minister has upper hand in taking decisions. Now, a concept has been introduced as a Minister of State. So this minister, individual ministers, when it got occupied or got engaged in too many activities and started remaining busy, taking decisions late, it impacted the time and the performance quality also. So a concept has been introduced, the Minister of State. So in between minister and department, there will be Minister of State, a Minister of State. So any department will directly report to Minister of State, and this Minister of State will report to ministries. These ministries will take this matter to the Council of Minister, and Council of Minister, through Council of Minister, it will be known to Prime Minister, and at the top it is President, and Prime Minister under Article 78 is duty bound to inform everything about to the President, everything happening in the administration or any legislations to the President. So this is the link. This is how they work. All are integrated. Okay. Then we found that too many persons are there in the parliament who want to grab the post. So another post has been created in this place between Ministry of State, between this Ministry of State and this Minister of State and this ministers. Here in between, one more post has been created, that is Minister of State Independent Charge. Minister of State Independent Charge. Okay. So yesterday I cleared everything. This all video will be uploaded today. If you want, you can see this. I just wanted to make a recap of this. So some points I'll discuss about Minister of State Independent Charge and why that post has been created. See, there is a concept called donkey born earlier is given priority than horses born later. Did you understand the thing? See, the concept is the intelligent person or experienced persons are from earlier. They are not given the opportunity, but the donkeys or the illiterate persons or the less experienced persons, they are being prioritized. They are being given more priority in governance, in ministries, in departments, everywhere. So system of empanelment in India, we follow the system of hierarchy. In administration, we follow the system of hierarchy. Hierarchy in the age. Hierarchy in age. So if some person age is more, he is more senior. No matter both the persons have been appointed together, joined together, but the persons having more age becomes senior.
or persons joining earlier become senior. So in this case, we follow the hierarchy. First, we give more priority to this. If this person is more important, more intelligent, more, we can say he has more capacity in administration, he is not given priority. Rather, we follow hierarchical system and we give priority to the upper person, the person who is in seniority, who is senior. We prioritize in a seniority basis. So our system of empanelment, in political sense, political scenario, our system of empanelment is just like hierarchical, or you can say seniority basis. This is driven by seniority. So Indian bureaucracy has been criticized. That is why I said donkey born earlier is given priority than horses born later. इसलिए मैंने कहा कि डोंकी जो पहले जन्म लेता है, बाद में जो जन्म लिया, उसके पहले जो हॉर्सेस जन्म लिए, है ना, डोंकी पहले जन्म लिया है, बाद में हॉर्सेस जन्म लिए. हॉर्सेस अच्छे कर सकते हैं बट नहीं, हॉर्सेस अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं बट नहीं, डोंकी को पहले, भाई सीनियोरिटी है, सीनियर्स हैं, तो डोंकी को पहले प्रेफर करेंगे हम. वी डोंट बॉदर अबाउट द performances. So in most of the union government in other countries too, the country has witnessed the emergence of Ministry of State Independent Charge. Most of the government, and this happens because of coalition government. coalition government के कारण ऐसा होता है, क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट में होता क्या है कि दोनों सिमिलर कैपेसिटी के गवर्नमेंट होते हैं. दो पार्टी अगर मिलती है, पार्टी ए और पार्टी बी, दोनों के तो कोई हेड होंगे ना, एक पर्सन हेड होगा, तो इन दोनों का जो लेवल है वो इक्वल है, कैपेसिटी सिमिलर है, सिमिलर कैपेसिटी है. तो अब ये दोनों चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूं, है ना. तो इस कंडीशन में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को इन्वॉल्व किया गया है, लाया गया है, एज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एज एन अटेम्प्ट टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन सीनियोरिटी एंड कॉम्पिटेंसी. तो ये सीनियोरिटी एंड कॉम्पिटेंसी दोनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे. तो इसीलिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो सीनियर पर्सन है उनको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और प्लस जिसके पास कॉम्पिटेंसी है, कैपेसिटी है, एक्सपीरियंस है, इनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, सीनियर पर्सन को भी और कॉम्पिटेंसी वालों को भी. दैट्स व्हाई बोथ पर्सन, सीनियर पर्सन ओके आप मिनिस्टर बन जाइए, और जो जिसके पास कॉम्पिटेंसी है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज. ओके, एंड होता यह है कि अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट को खबर देगा, जो भी रिपोर्ट देना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट को देगा. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल रिपोर्ट टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट चार्ज. He has to report ministers, individual ministers, or he can directly go to the council of ministers. This person can directly go to the council of ministers, or he can go through ministries, this minister, individual ministers, because this minister of state independent charge is also the member of this cabinet, central cabinet. Through this he enjoys. अब हुआ ये कि अगर दो पार्टी हैं, दोनों के हेड है, अब इन हेड को दोनों को चाहिए प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट चाहिए, तब दो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट तो क्रिएट कर सकते नहीं है, तो एक लोअर पोस्ट क्रिएट किया गया जिसको बोला गया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट किया गया. अब इसको इस प्राइम मिनिस्टर से नीचे यहां पर एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट ही नहीं है. Our constitution doesn't talk about this deputy prime minister. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब पोस्ट है नहीं, तो ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को कुछ सैलरी मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं है, कोई सैलरी मिलता नहीं है. नो पर्क्स, नो सैलरी,
नो एनी प्रिविलेजेस। और अगर इस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को कोई पोस्ट चाहिए, मतलब अगर सैलरी चाहिए या पर्क्स चाहिए, तो इसको किसी एक मिनिस्ट्रीज को इसको हेड करना पड़ेगा, कोई एक मिनिस्ट्रीज को इसको हेड करना पड़ेगा। तो उस मिनिस्ट्रीज को हेड करने के लिए इस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पैसे मिलेंगे, सैलरीज मिलेंगे, प्रिविलेजेस एंड पर्क्स मिलेंगे, फैसिलिटीज मिलेगी, सिर्फ इस मिनिस्ट्रीज को होल्ड करने के लिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट है नहीं तो उसके लिए उसको सैलरी नहीं मिलता है ना। तो इन दिस केस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हम सीनियोरिटी और कॉम्पिटेंसी दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं यहां पर भी वही हाल है, कॉम्पिटेंसी और सीनियोरिटी दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं यहां पर। दिस इज ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ यंग एंड कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस आर मेड, जो यंग होते हैं और कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस होते हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया जाता है, ताकि सारा काम वो करें, इंडिपेंडेंट चार्ज में सारा काम वो करें। और मिनिस्ट्रीज में जो होते हैं सीनियर लोग होते हैं, डम पर्सन्स होते हैं, बस वो बैठे रहते हैं और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनको सारा इन्वेस्टिगेशन करके देते हैं वो उसको पास कर देते हैं, जस्ट टू स्ट्राइक द बैलेंस। ओके, सो इसीलिए इनकी कॉम्पिटेंसी ज्यादा होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के जो होते हैं इनकी कॉम्पिटेंसी ज्यादा होती है, इसलिए इनको कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। इंडिया हैज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो आप सभी को पता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां भी होता है ना, ये बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी बी वेरी केयरफुल। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है बेस्ड ऑन दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम भी होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये एक साथ, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यहां पर जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, collectively responsible to Lok Sabha, lower house of the parliament। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी पार्लियामेंट में जो भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। लोअर हाउस में लोकसभा में अगर कुछ होता है उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर एक मिनिस्टर्स को देखा जाए इंडिविजुअली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स individually responsible, council of ministers are individually responsible to president। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मिनिस्टर्स, कोई भी मिनिस्टर जो होते हैं, कोई भी मिनिस्टर, ये enjoys the office during the pleasure of the president। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट खुश है आप मिनिस्टर बने हुए हैं, और जब प्रेसिडेंट नाराज हो जाएगा तो आपको हटा दिया जाएगा और दूसरे को अपॉइंट किया जाएगा। अभी रिसेंटली वही हुआ है ना, 12 मिनिस्ट्रीज को हटा दिया गया, फिर नए चेहरे को लाया गया, नए फेसेस को अपॉइंट किया गया। एक्चुअली ये प्रेसिडेंट तो कुछ काम करता नहीं है, प्रेसिडेंट इज मेयर रबर स्टाम्प। तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही है ना, प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, बिकॉज ये प्रेसिडेंट जो है दिस वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से वर्क करता है ये प्रेसिडेंट, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से। तो और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट वैसा करेगा। प्राइम मिनिस्टर थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देगा प्रेसिडेंट वैसे ही काम करेगा। सो इट मीन्स इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, ये एक मिनिस्टर जो है ही इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट,
और कलेक्टिवली पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है वो। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा, इट मींस दैट दिस बॉडी, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन रिमेन इन एग्जिस्टेंस ओनली टिल दे एंजॉय द मेजोरिटी इन द लोकसभा और पार्लियामेंट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जब तक इनके पास मेजोरिटी है, टिल देन दे enjoy being in the parliament, till then they enjoy being in the parliament और लोकसभा। जिस दिन इनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, अगर अब मिनिस्टर्स धीरे धीरे हटने लगेंगे, इनके मेजोरिटी जिस दिन खत्म हो जाएगी, इनके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने आप खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल सीज, विल एंड, एंड प्राइम मिनिस्टर विल नो लॉन्गर विल रिमेन द मिनिस्टर, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएगी, गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाएगी। तो फिर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए तो उसको वो हार जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो जो माइनॉरिटी स्टेटस जिसका आएगा वो हार जाएंगे। तो इसलिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, एंड दिस पार्लियामेंट कैन क्वेश्चंस एनी डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Parliament can question any decisions of Council of Ministers and all actions and inactions of the members of Council of Ministers. ठीक है, तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्वेश्चन। अब पार्लियामेंट में कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स होता है, वो क्वेश्चन कर सकता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टेकन सम डिसीजंस, देन पार्लियामेंट में कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर्स क्वेश्चन कर सकता है थ्रू पार्लियामेंट कि हाउ कैन यू टेक दिस डिसीजन, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बोल सकता है उनके एक्शंस पे या इनएक्शंस पे, कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, या फिर वो साइलेंटली बैठे हुए हैं, then this parliament has the power to ask the questions from this council of ministers individually also, and this council of ministers or the members of the council of ministers are subject to parliamentary scrutiny। ये council of ministers जो है ना, पार्लियामेंट उनके ऊपर स्क्रूटिनी रखते हैं। पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी का मतलब है कि उनके ऊपर सारा देखभाल रखा जाता है ताकि वो किसी तरह से कुछ ये ना करें, इलीगल एक्टिविटी या आर्बिट्ररी एक्शन ना लें। वो जो भी एक्शन लेंगे वो कलेक्टिव होगा और सबके लिए बेनिफिशियल होगा, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही हुआ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ। एंड जिस दिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनकी मेजोरिटी नहीं होगी, मेजोरिटी अगर लेस हो जाएगी, है ना, अगर ये मेजोरिटी लेस हो जाएगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इनकी लोकसभा में, और ये अगर मेजोरिटी हो गए और लोकसभा में कॉन्फिडेंस इनका कम हो गया, देन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल सीज टू एग्जिस्ट। तब प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और उनको फिर से नई कैबिनेट बनेगी, है ना, कैबिनेट, नया कैबिनेट बनेगा। ये कैबिनेट जो वर्ड है ना, कैबिनेट वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, और वो है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 ये डील करता है नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। तो इसमें ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर विल इंपोज नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ दिस कैबिनेट, ऑन द रिटन एग्रीमेंट ऑफ द कैबिनेट, है ना। कैबिनेट लिख कर देगी तभी प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट विल इंपोज इमरजेंसी when the cabinet will give a written information, written letter to the president, then only president can impose national emergency। 1957 में ऐसा नहीं था, है ना, 1975 में, सॉरी
1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब ऐसा नहीं था, रिटर्न कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती थी कैबिनेट मिनिस्टर से, बस प्राइम मिनिस्टर फोन कर दिया, ओके है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोल दिए प्रेसिडेंट को कि आपको इंपोज करना है, प्रेसिडेंट इंपोज कर देता था। तो फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसको अमेंड किया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड करके उसमें रखा गया कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी उसी कंडीशन में इंपोज कर सकता है जब ये कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट जब उनको रिटर्न लेटर देगा, तो सेंट्रल कैबिनेट जब उनको रिटर्न लेटर देगा। तो ये कैबिनेट जो है सिर्फ एक ही बार मेंशन किया हुआ है, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने मिनिस्टर्स होते हैं, इनके कुछ मिनिस्टर्स को निकाल करके कैबिनेट बनाया जाता है। कैबिनेट में सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे मेंबर्स नहीं होते हैं, कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे मेंबर्स नहीं होते हैं। काउंसिल ऑफ कैबिनेट जो है, कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर्स के जो सबसे नियरेस्ट मिनिस्टर होते हैं ना, वो होते हैं कैबिनेट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो सभी मिनिस्ट्रीज आ जाते हैं, इवन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज भी आ जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, बट कैबिनेट में सभी लोग नहीं आते हैं, और कैबिनेट में बहुत कम मेंबर होते हैं, और इनका डिसीजंस फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंपोज करता है। तो we can say that according to article 352, as per article 352, this cabinet is the highest decision making body. तो अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, अब ये है कैबिनेट। आपको याद रखना पड़ेगा, कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी राइट नाउ, एंड दिस कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, तो ये कैबिनेट इज आल्सो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, व्हिच इंक्लूड दिस कैबिनेट इंक्लूड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो। इट इज अ वेरी पावरफुल बॉडी। ये कैबिनेट जो होता है ना, कैबिनेट इज अ वेरी पावरफुल बॉडी, पावरफुल बॉडी इन कंपैरिजन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। In comparison to council of ministers, cabinet is more powerful, and today it has established to be the highest decision making body of India, and its decisions are deemed to be the decision of council of ministers. तो कैबिनेट जो भी डिसीजन लेगा, उसके डिसीजंस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन समझा जाएगा। तो अभी ये कैबिनेट, ये सिर्फ आर्टिकल 352 में मेंशन किया हुआ, ओनली अंडर आर्टिकल 352। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं भी कैबिनेट लिखा हुआ नहीं है, ये पहली बार आर्टिकल 352 में ही कैबिनेट लिखा हुआ है। तो इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हमारा जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का जो क्या बोलते हैं टुगेदरनेस है ना, और इनके सेटअप जो हैं दोनों मिलकर चलते हैं। देयर इज नो वाटर टाइट सेपरेशन, बोथ आर इंटीग्रेटेड। ओके, सो इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द कंट्री, कैबिनेट हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, and as the decision of the cabinet for all practical purposes are deemed to be final. Decisions of the cabinet for all purposes are deemed to be final and are also deemed to be the decision of council of ministers, and then communicated to president. That decision is communicated to president, and the president is bound to act upon. So cabinet through council of ministers informs the president about any decision, and president is bound to act. President is bound to act upon. तो कैबिनेट का डिसीजंस जो है प्रेसिडेंट को डायरेक्टली जाता है थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अपॉन. This emergence of the cabinet
as the highest decision making body has made the decision making process and that is much easier, smoother and broad and exhaustive, comprehensive, consultative. तो इसलिए कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी राइट नाउ. पीटी में ये आ सकता है हु इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि हु इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एट द यूनियन लेवल. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे देगा, कैबिनेट दे देगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दे देगा, और द प्रेसिडेंट भी दे देगा. सो इट्स द कैबिनेट. अगर कैबिनेट दिया रहेगा तो कैबिनेट, और अगर कैबिनेट नहीं है देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. And these cabinet meetings are presided by the prime minister. ये कैबिनेट का जो मीटिंग होता है प्रिसाइडेड और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हु डिफाइंस द एजेंडा, कि क्या एजेंडा होगा, क्या हम किस मुद्दे पे बातचीत करना चाहेंगे. हु डिफाइंस द एजेंडा एंड फिक्सेस अप द वेन्यू फॉर द मीटिंग. प्राइम मिनिस्टर मीटिंग का वेन्यू फिक्स करता है, प्राइम मिनिस्टर एजेंडा फिक्स करता है कि आज का मीटिंग ये है, आज का कैबिनेट मीटिंग ये है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिमोनेटाइजेशन. और डिमोनेटाइजेशन जो है आ जाते हैं रात में उस तरह से. सो इस तरह से कैबिनेट ही सारा डिसीजंस लेता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पास करता है, एंड थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, इवन प्रेसिडेंट्स को जाता है. एंड जब भी ये कैबिनेट मीटिंग होती है ना, ऑल मिनिस्टर्स, कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इस कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ऑल मिनिस्टर्स आर इंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स. तो ये लीगल इंटाइटलमेंट है. जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, हम बोल सकते हैं जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, सारे मिनिस्टर्स आर इंटाइटल्ड, लीगली इंटाइटल्ड टू गो टू द मीटिंग, इवन इफ प्राइम मिनिस्टर डजंट वांट हिम टू बी देयर. अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं भी चाहता है कि अगर वो इंडिविजुअल पर्संस, अमित शाह जो है आज हमारी मीटिंग में नहीं आए, है ना, बट अमित शाह के पास वो राइट है, अमित शाह कैन गो टू दैट मीटिंग, लीगल राइट है, विदाउट कॉलिंग ऑल्सो. बट ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनका लीगल राइट्स नहीं है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग में मिनिस्टर्स जा सकते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैन नॉट गो, नॉट एंटाइटल्ड. मिनिस्टर ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है. अगर इनवाइट किया जाएगा then only they will go, otherwise they are not entitled to attend the meeting of council of ministers. स्पेशल इनविटेशन इनको भेजा जा सकता है कि हाँ आप आइए और अटेंड कीजिए मीटिंग को, है ना. अगर ऐसे कोई इनकी कोई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और उनका प्रेजेंस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जरूरी है, या उनका प्रेजेंस जो है कैबिनेट में जरूरी है फॉर टेकिंग एनी डिसीजंस, then he or agenda of that meeting warrants him to be present there, then prime minister can specially invite that ministers of state, that minister of state को specially invite कर सकते हैं. तो डिप्यूटी मिनिस्टर्स आर नेदर इनवाइटेड. अगर डिप्यूटी मिनिस्टर्स हैं तो डिप्यूटी मिनिस्टर्स को, डिप्यूटी मिनिस्टर्स और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स तो पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही नहीं है हमारे यहाँ इंडिया में, तो दे आर नेवर इनवाइटेड, नीदर दे आर इनवाइटेड एंड नोर कैन बी इनवाइटेड टू अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स. स्पेशल इनविटेशंस भी नहीं भेजा जा सकता है उनको कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने का कोई राइट नहीं है. अब आया सवाल कि अगर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो तो क्या वो अटेंड कर सकता है कि नहीं. देखो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स ये सिर्फ नाम का है. अगर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है तो ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, बट सिंस ये सिर्फ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये किसी मिनिस्ट्रीज को भी हेड कर रहा है ना, किसी मिनिस्ट्रीज को भी हेड कर रहा है. तो मिनिस्ट्रीज को हेड करने के लिए ये कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकता है, मिनिस्ट्रीज को हेड करने के लिए. तो ये मिनिस्ट्रीज को हेड कर रहा है, इसका मतलब he is the member of council of ministers or then he is the member of cabinet का मिनिस्टर है, then he can directly attend.
अगर ये मिनिस्टर है देन ही कैन अटेंड, और अगर ये मिनिस्टर नहीं है, he is the prime Sir, minister, then can attend. Yes. sir, like, are all the ministers a part of the cabinet itself, or like selectively some are the part of the cabinet? Selected ministers are the part of cabinet. All ministers are part of council of ministers, and only selected ministers are part of cabinet. Though they are not the part of cabinet, but when their meeting happen, then all the ministers can they are entitled to join the meeting, right? Yes, legally entitled to join the meeting. Even if they are not being called, they are legally entitled to join the meeting. Okay, sir. Okay. And it may be, see, all ministers are the member of council of ministers. Okay. And all ministers may or may not be the member of cabinet. It depends on the will and fancies and whims of the prime minister. अगर प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने मिनिस्टर हैं सबको कैबिनेट में लाया जाए, सभी लोगों को कैबिनेट में लाया जाए, तो सभी लोग हो सकते हैं, हो सकते हैं. और अगर प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि नहीं, ओनली लिमिटेड पर्संस कैन कम टू द कैबिनेट मीटिंग और कैबिनेट, देन ओनली लिमिटेड पर्संस आएंगे. सो इट डिपेंड्स. ये हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता है. सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं. Depends on the whims and fancies of the prime minister. Okay. And they are legally entitled to attend the meeting of the cabinet. Legally entitled to attend the meeting of the cabinet. मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं, दे कैन अटेंड कैबिनेट मीटिंग ओनली ऑन द स्पेशल इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट independent charge, they can attend only on the special invitations. When the prime minister invites that person specially, individually, then they can attend, but they are not entitled legally. And if they do not represent, if they do not attend this ministry of independent charge, if they do not attend, then their presentations that will go unrepresented in the cabinet decision. It will go unrepresented in the cabinet decision. That is why there is an established practice that minister of state independent charge at the time of their appointment itself are given a letter by the prime minister to attend all cabinet meetings till further order. है ना? तो जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, जब ये ओथ लेते हैं ना, उसी समय इनको स्पेशल लेटर दे दिया जाता है कि यू आर इंटाइटल्ड टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स. वो उसी समय स्पेशली इनवाइट कर दिया जाता है उनको, स्पेशल इन्विटेशन उसी समय दे दिया जाता है. टिल फर्दर ऑर्डर आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. तो स्पेशल इन्विटेशंस होते हैं उनके. सो दिस इज ऑल अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यू हैव एनी क्वेश्चंस? Anybody has any questions? No? Sir, yes, sir. I have a question, sir. Yes. Sir, is this post of Ministry of State independent charge a constitutional position or what? The post of Minister of State independent charge is it's a is it a constitutional position? Like, it is mentioned in the constitution, or like deputy PM we have created that? No, Minister of State or Minister of State independent charge, IC, is not a constitutional post. We have created it later on. We have created it. We have created it to satisfy the ego of two similar persons coming into the ministries, or it maximized in the era of coalition government, and it happens in all the countries, many countries. It is there. The traditions continues in many countries. Okay, sir. So our next topic is Prime Minister, very important topic.
Prime Minister. See, Prime Minister is head of the government in the parliamentary form of government. Right now, we discussed that in parliamentary form of government, Prime Minister is head of the government or system. And that Prime Minister is the real repository of executive powers of the Union. Prime Minister. So he is head of the government. He is real executive. You can say the real executive. Real executive means he possesses the power of being the real executive. Real repository of executive powers is with the Prime Minister. This is Prime Minister's post is the most important, we can say important as well as decisive. Important and decisive. Most important and decisive constitutional authority. The post of Prime Minister is most important post, most decisive constitutional post in the parliamentary form of government, because parliamentary form is also referred to as the prime ministerial form of government. ये parliamentary form को prime ministerial form of government भी हम बोलते हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा बोला जाता है इन प्रेसिडेंस. देखो, लॉर्ड मोरले मिंटो का नाम आपने सुना होगा. वाइसरॉय थे ब्रिटिशर्स में, वाइसरॉय थे ब्रिटिशर्स के समय में. तो लॉर्ड मोरले ही, अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक्सप्लेन किया है एज प्राइमस इंटर पेयर्स. प्राइमस इंटर पेयर्स, इसका मतलब है फर्स्ट अमोंग इक्वल्स. फर्स्ट अमोंग इक्वल्स, प्राइमस इंटर पेयर्स, फर्स्ट अमोंग इक्वल्स. तो हम जितने भी मिनिस्टर्स को हम जनरल इलेक्शन में वोट करते हैं, जनरल इलेक्शन में जो वोट करते हैं और मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, सभी तो इक्वल होते हैं ना. सभी इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ वोट लेते हैं और जीत जाते हैं. सभी लोग जीत कर जाते हैं. बस इनमें से कोई एक, सभी लोग इनमें से कोई एक को अपना लीडर सेलेक्ट करते हैं और ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर. सो ये जो इलेक्ट होकर गए हैं, दे विल सेलेक्ट देयर प्राइम मिनिस्टर. वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं. ये पोस्ट पोल और प्री पोल दोनों हो सकता है, ये सेलेक्ट करते हैं. तो दिस प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमोंग इक्वल्स. ये सारे लोग इक्वल हैं. दे ऑल आर इक्वल. ऑल आर इक्वल बिकॉज ऑल दे हैव सिक्योर्ड सम वोट्स. सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, और उन्हीं में से इनको ज्यादा प्रायोरिटी दे दिया जाता है बिकॉज उनको लीडर सेलेक्ट किया जाता है. उनके फीचर्स के कारण या उनके कुछ कैपेसिटी के कारण उनको लीडर सेलेक्ट किया जाता है. सो ही बिकम्स फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट अमोंग इक्वल्स, एज पर द वर्ड्स ऑफ मोरले मिंटो. विलियम हारकोर्ट्स बोलते हैं, विलियम हारकोर्ट्स. ये कोट्स आपको लिखने चाहिए, है ना. आप लोग इनको नोट डाउन कीजिए. विलियम हारकोर्ट्स, he says that prime minister as interstellar luna minors. माइनर्स भी बोल सकते हैं. इसका मतलब ये है, ये कुछ
पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। तो विलियम हार्कोर्ट he expresses prime minister, explains prime minister as the interstellar luna minors। इसका मतलब है a moon among lesser stars। a moon among lesser stars। Graves, I'm not going to write everything। so Graves ये बोलते हैं गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। ग्रेविस, HRG ग्रेविस, GREA, ग्रिप्स बोलते हैं, HRG ग्रिप्स। प्राइम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। लॉर्ड मुनरो in Lord Munro's words, he expresses prime minister as the captain of the ship called state। Lord Munro expresses prime minister as the captain of the ship and that ship is the state, country is the ship and prime minister is the captain। so prime minister जो भी हो, ये सारे एक्सप्लेन को छोड़ करके, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी। जो पार्टी जीती है उसकी लीडर, वो उस पार्टी के लीडर है। या फिर अगर वो कॉलिशन गवर्नमेंट है, इन पावर, देन द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी और द कॉलिशन गवर्नमेंट इन पावर। जो मेजोरिटी में होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उस पार्टी के लीडर जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, कॉलिशन गवर्नमेंट के लीडर जो होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे। रिमेंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए गवर्नमेंट में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर दे फॉर्म्ड यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस। सो बहुत सारे गवर्नमेंट जो साथ में आकर के उन्होंने फॉर्म किया, यूपीए को फॉर्म किया। और इन्होंने सभी गवर्नमेंट जब इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद दे ऑल, उनको ये था कि सोनिया गांधी विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बट सोनिया गांधी डिक्लेयर्ड नो, आई नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। सो दे सेलेक्टेड मनमोहन सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर। ये एक जोक भी होता है ना, सोनिया सेंड्स MMS एंड मनमोहन सिंह बिकम्स द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा एक MMS टाइप का है मनमोहन सिंह। तो कॉलिशन गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और पार्टी के लीडर जो होते हैं दैट ही और सी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो PM इज द लीडर ऑफ द नेशन या कंट्री। PM is the leader of the nation or country. He is the chief crisis manager। देखो बहुत अच्छा नाम दिया है। चीफ क्राइसिस मैनेजर। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली डील विथ, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, ही इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर, दो ही कैन सीक द हेल्प ऑफ अदर्स, तो ही इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर ऑफ द कंट्री। Prime Minister is the chief crisis manager of the country. He is the chief spokesperson of the government. He is the Prime Minister is the chief spokesperson of the government. गवर्नमेंट के बिहाफ से जो भी कुछ अनाउंस करने हो, जो भी कुछ बोलने हो, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। अब ये सैड पार्ट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, ठीक है। अभी जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ये आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, बट ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन, गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन। गवर्नमेंट के थ्रू से अगर कोई भी किसी चीज या कोई भी जवाब सीख किया जाता है ना, कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू आंसर दैट।
So prime minister can claim that because see we elect representative, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, इनमें से ही कोई एक जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो अब इन सब के हेड हो जाते हैं वो, है ना, सबके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो ही बीइंग अ लीडर ऑफ ऑल दीज ये सबके लीडर हो जाते हैं ये। एंड ये अभी जो भी कुछ कहेंगे, सो प्राइम मिनिस्टर, वट एवर प्राइम मिनिस्टर सेज, according to the prime minister, whatever the PM says, PM expresses the view of the people in the parliamentary form of government. So whatever PM says, he expresses the view of people. Whatever prime minister says, he expresses the view of the people, because he is the leader of all the parties. He is leader of the winning party, or even in the case of coalition, he is the leader. So whatever he says, he expresses, he represents the people, citizen of the country. ओके अभी देखो इंडिया में क्या है, ट्रेंड है कि पार्लियामेंट में अभी रिसेंट फाइंडिंग्स है कि पार्लियामेंट में अबाउट 30 to 40% ऐसे भी मेंबर्स हैं हु आर क्रिमिनल्स इन द सेंस कि उनके अगेंस्ट में किसी ना किसी तरीके का केस है, केस रजिस्टर्ड है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन दैट। 30 to 40%. We cannot make our parliament free from criminals. कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम क्रिमिनल कर सकते हैं, बट सोसाइटी को इंपावर करना पड़ेगा, सोसाइटी को इनलाइटन और लिटरेट बनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। Then only they will choose the intelligent prime minister who is free from all types of criminal activities. तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लाइक भी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स को डिसलाइक करेंगे, है ना। तो जैसे जो पर्सन जैसा हो, अगर वो क्रिमिनल माइंडेड हो तो अपने तरह का पॉलिसी फ्रेम करेगा, और अगर वो थोड़ा लिबरल माइंडेड हो, लिबरल पॉलिसी फ्रेम करेगा, या फिर अगर कॉम्पेंसनेट माइंडेड हो, कॉम्पेंसनेट पॉलिसी फ्रेम करेगा। सो जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होते हैं ना, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ दैट मिनिस्टर और दैट प्राइम मिनिस्टर, ये डिपेंड करता है। तो वेदर वी लाइक इट और नॉट, पर्सनल likes or dislikes of prime ministers will affect policy matters. For example, Atal Bihari Vajpayee, he was having the friendly relations with all political parties, even he was having the friendly relations with Pakistan. उनके अपने पार्टी के लोग बोलते थे कि how you are being the friend, why you are being the friend of Pakistan, he is our enemy country, but उनका व्यू अलग था, no, we have to be the make our Pakistan also flourish. उनका व्यू अलग था, उन्होंने बहुत समझौता एक्सप्रेस, याद है, you know that he started a train that is called Samjhauta Express. So that train was starting from New Delhi and it was reaching to Karachi. So that अटारी बॉर्डर होते हुए जाता था वो ट्रेन, वो फ्रेंडली रिलेशंस था हमारे, उनके मन में फ्रेंडली रिलेशंस था। तो उनकी पर्सनालिटी वैसी थी, तभी उन्होंने जाकर के वैसे कुछ पॉलिसी फ्रेम किए, सो दैट आवर नेबरिंग कंट्रीज शुड फॉलो अस, शुड लीड अस, शुड कंसीडर अस एज अ लीडर। दैट वाज हिज व्यू। हम जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी में होता यह है कि पहले हम क्या करते थे, वी वर फॉलोइंग द वेस्ट। सो इंडिया में जो भी कुछ होता था, वी वर फॉलोइंग द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका, लाइक जो डेवलप्ड कंट्री होते थे उनको फॉलो करते थे, है ना। तो हम डायरेक्टली उनसे ही डील करते थे, और हमारे आसपास इंडिया के जो आसपास के लोग हैं,
तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका यहाँ पर है, मैप आपको पता है, श्रीलंका यहाँ पर है, ये बांग्लादेश है, इधर चाइना है, इधर तिब्बत है, यहाँ पर छोटा सा एक जो कंट्री है ये यहाँ पर ट्राइंगल में बजा हुआ है, ये यहाँ पर ये भूटान है, और ये नेपाल है। नेबरिंग कंट्रीज यू माइट बी नोइंग, इधर पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है यहाँ पर। और ये यहाँ पर थोड़ा सा 1 किलोमीटर का जो है, हमने अफगानिस्तान से भी हमारा बॉर्डर निकला हुआ है, अफगानिस्तान से भी बॉर्डर है, ठीक है। एंड इस साइड में क्या है, वाटर है, वाटर बॉडीज। तो हम क्या करते थे, अपने अपने आप में सेंट्रिक होते थे। we never helped these neighboring countries, never helped these neighboring countries. So जब आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने, आई के गुजराल, इन्होंने एक थियरी दिया, डॉक्ट्रिन दिया, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील। डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील, आई के गुजराल ने डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील दिया। इनका पंचशील में 5 पॉइंट्स था, 5 पॉइंट्स थे पंचशील में, और 5 पॉइंट्स में ये था कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबर्स फर्स्ट इन्होंने पॉलिसी दिया, नेबर्स फर्स्ट। तो अगर हमें कुछ भी होता है या हमारे नेबरिंग कंट्रीज को कुछ होता है, तो इंडिया शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली, इंडिया शुड हेल्प देम एक्टिवली, सो दैट दे ऑल फील लाइक इंडिया इज आवर लीडर। सो हम अपने साउथ ईस्टर्न एरिया में हम, वी कैन बी द लीडर, इंडिया कैन बी द लीडर। सो दिस वाज द व्यू ऑफ आई के गुजराल। उन्होंने सब चाहा कि हमें आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो नेबर्स हैं, हम अगर आगे बढ़ सकते हैं तो उनको लेकर ही बढ़ना पड़ेगा हमें। वी कैन नॉट गेट सेपरेटेड एंड वी alone cannot get developed. So that was his view. Accordingly, he framed the doctrine. So policies formulations, law formulations, doctrine formulations, and even the system of governance, everything happens as per the personality of that prime minister or the individual ministers. Everything happens as per the prime minister. राजीव गांधी जब थे, तो राजीव गांधी, he was more loving to technology, he was more lover of technology. So he introduced the technology in India. He introduced the system of digitization. पहली बार, for the first time in India, he introduced the systems digitalization. Now the government is encouraging it more, to develop more, to be more digital. But it was initiated by the Prime Minister Rajiv Gandhi itself. That was his view. That was his personality. According to the personality, everything gets developed, policies and programs, even the international relations. So if we make an integrated analysis about the status and the authority of the Prime Minister in parliamentary democracy, we can certainly reach to this conclusion that it is the Prime Minister who guides, who supervises, who directs, who steers, and even sometimes dictates on all policy matters, which can include foreign policy, defense policy, nuclear policy, security, economic policy, social policy, programs, schemes, everything, all initiative of the government. So सभी में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर्स का प्रभाव होता है. He leads, prime minister leads in everything. So in the parliamentary democracy, it is the prime minister and his decision which decides the destiny for the country. जब कोलिशन एरा जब था ना, कोलिशन गवर्नमेंट जब बनाए जाते थे, इवन नाउ अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट है, बट सिंगल पार्टी मेजोरिटी अभी होती है. जब कोलिशन एरा था, दैट उस समय में प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को जो है ना, अथॉरिटी थोड़ी डिक्लाइन हो गई थी. प्राइम मिनिस्टर्स की अथॉरिटी डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि क्या होती थी, प्राइम मिनिस्टर्स वाज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस इंडिविजुअली. एक फोन आता था, आपको वो मीटिंग अटेंड करनी है, बस प्राइम मिनिस्टर हैज टू गो. सोनिया गांधी के घर से एक फोन आता था, आपको मीटिंग अटेंड करनी है ना. एक बार कैबिनेट मीटिंग हुआ करता, कैबिनेट मीटिंग हुआ था, तो कैबिनेट मीटिंग में फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर एग्रीमेंट होना था. ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर एग्रीमेंट होना था.
P. Chidambaram was the finance minister at that time. Okay. P. Chidambaram, he was the finance minister at that time. तो हुआ ये, कैबिनेट मीटिंग जब हो रही थी तो प्राइम मिनिस्टर को ये मतलब ये पता नहीं था कि कैबिनेट मीटिंग है, बट उनको डिसीजन क्या लेना है वो नहीं पता था. तो ही अपोज्ड, उन्होंने जो 67% का जो सिक्योरिटी का बिल था, 67% पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा था उस समय, फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उन्होंने अपोज किया कि 67% को क्यों, वाई कांट वी गिव टू 100%, है ना, उन्होंने अपोज किया. पी चिदम्बरम बगल से बोले ये मैडम का ऑर्डर है, आपको एग्री करना पड़ेगा. तो उसके लिए उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट्स के लिए मीटिंग को ये किया गया, डिले किया गया, पोस्टपोन किया गया, या उसको इंस्टॉल किया गया मीटिंग को 5 मिनट्स के लिए. एंड फिर उस 5 मिनट्स के दौरान क्या हुआ, नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर एग्रीड. उस 5 मिनट्स में एक फोन आया होगा प्राइम मिनिस्टर को, सोनिया गांधी का, कि जो कैबिनेट मीटिंग में जो हो रहा है दैट इज माय डिसीजन एंड यू हैव टू एग्री. प्राइम मिनिस्टर एग्री हो गए. सो अगर कोलिशन की गवर्नमेंट होती है तो प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलती है. ये बोलने का मतलब ये है, कोलिशन की गवर्नमेंट अगर है तो सबको लेकर साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबको खुश रखना पड़ेगा, सभी को खुश रखना पड़ेगा. अभी हम थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इस पे आ जाते हैं. सो 1 मिनट, वेट. एक टर्म है, आई विल टेल यू, किचन कैबिनेट क्या होता है पता है? किचन कैबिनेट किसी को पता है? Yes, sir. I think so. Yes, tell me, please explain. Sir, it is kind of यानी एक ऐसे इनफॉर्मल बॉडी रहती है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर और उसके ऐसे क्लोज एसोसिएट्स इंक्लूडेड रहते हैं. फॉर एग्जांपल फैमिली फ्रेंड्स और एनी मिनिस्टर्स दैट ही इज क्लोज विद. नहीं, फैमिली फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे उसको. देखो, मैंने अभी कहा कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. Yes. और इसके ऊपर होता है कैबिनेट. अब प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अलोन इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस. ये क्या करेगा, अपने क्लोज एसोसिएट्स, जो मिनिस्ट्रीज में जो क्लोज एसोसिएट्स होंगे, या फिर कुछ स्पेशल डिग्निटरीज होंगे जिसको इनको स्पेशल नॉलेज होगा, है ना, उनको मिला करके कुछ क्लोज लोगों को, इसको बोलते हैं इनर कैबिनेट. इसको बोलते हैं इनर कैबिनेट. इसमें वो वेरी क्लोज पर्सन्स हु आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स, है ना, इसको बोलते हैं. इवन इस इनर कैबिनेट से भी क्लोज होता है उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट. बस आपको ये याद रखने के लिए किचन कैबिनेट होता क्या है, तो एक किचन में जितने लोग आ सकते हैं उतने ही लोग मिलकर के किचन कैबिनेट बनाते हैं, और खाना बनाते बनाते ही वो डिस्कस कर लेते हैं सारा कुछ. तो दिस इज इनर कैबिनेट. बस ऐसा, ठीक है, इनर कैबिनेट ऐसा याद रखना है. प्राइम मिनिस्टर का जो इनर कैबिनेट होता है दैट इज नॉन एज द किचन कैबिनेट. दिस इज इनफॉर्मल बॉडी. ये जो होता है किचन कैबिनेट जो है इनफॉर्मल बॉडी है. अब प्राइम मिनिस्टर इज अलोन is not capable of taking decisions. In that case he forms this kitchen cabinet, inner cabinet बनाता है, ताकि जो भी डिसीजन इनर कैबिनेट में हो वो डिसीजंस कैबिनेट के ऊपर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताया जाए. तो इसमें प्राइम मिनिस्टर को जो सबसे नियरेस्ट कलीग्स होते हैं ना, कलीग्स, इन्फ्लुएंशियल कलीग्स जो होते हैं, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2-4 ज्यादा नहीं होते हैं, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर्स का बहुत ज्यादा फेथ हो. Prime Minister believes that whatever he does for me and he does for betterment of country and for me also, my party also. तो उनको रखा जाता है वहां पर. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का भी इनर कैबिनेट था, जिसमें सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
है ना। उसके बाद एस अयंगर थे उसमें, उसके बाद किदवई थे। ये सारे 4 लोग थे उनके कैबिनेट। लाल बहादुर शास्त्री में के भी कैबिनेट में थे, वाईबी चौहान। अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में भी इनर किचन कैबिनेट था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, इस तरह के लोग थे। अभी भी है, अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनके भी किचन कैबिनेट है। इनके किचन कैबिनेट्स में अमित शाह है ना। इनके किचन कैबिनेट में अरुण जेटली थे जो अब नहीं रहे। इनके किचन कैबिनेट में अजीत डोभाल हैं अभी, अजीत डोभाल उनके किचन कैबिनेट में है। ही इज नॉट द मिनिस्टर। अजीत डोभाल इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो भी इनके किचन कैबिनेट में है। सो जो क्लोज एसोसिएट्स होते हैं, जो उनको अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता सकें, उनको विनिंग पॉइंट्स बता सकें, वैसे लोग होते हैं किचन कैबिनेट में। तो आर्टिकल 75, we are going to the article, okay? Article 75, specifically clause 1, it talks about there shall be, Prime Minister shall be appointed by the President of India. Prime Minister shall be appointed by the President of India. In normal circumstances, the President can hardly exercise his discretion power. नॉर्मल सर्कमस्टांस में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन पावर मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और ऐसे सिचुएशनल पावर्स प्रेसिडेंट्स के पास आते हैं और प्रेसिडेंट उसको उस पावर को यूज करता है। सो इट इज द प्रेसिडेंट्स चॉइस टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स चॉइस टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द लीडर ऑफ द पार्टी विथ मेजोरिटी इन लोकसभा। तो प्रेसिडेंट के चॉइस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो लिमिटेड है कि अगर पार्टीज हैं और उनके पार्लियामेंट में उनका अगर मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू मेक दैट लीडर ऑफ दैट पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर। उनको ओथ दिलवाएगा। एंड इफ नो पार्टी हैज इन पोजिशन टू गेन और रिक्वायर्ड मेजोरिटी in case of coalition government, the president can exercise his discretion and the president can choose the prime minister. President in that case, अगर no party got majority, hung assembly बोलते हैं, जिसमें अगर कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, hung assembly बोलते हैं। In that case, in case of hung assembly, president has the power or discretion to choose the prime minister. And the president can choose any leader of the party who is in opinion of the president can form a stable government. अगर president को लगता है कि अगर मैं इस आदमी को select करूंगा, he can form the stable government. तो जब president invite करते हैं ना किसी भी लीडर को, president किसी भी पार्टी के लीडर को invite करते हैं to form the government, in inviting a leader, the president can follow the following conventions. First one, the president should invite the leader of the opposition if the government is defeated in the house on the no confidence motion. सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी अगर मोदी गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ में पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और नो कॉन्फिडेंस मोशन में मोदी गवर्नमेंट कुडंट प्रूव इट्स मेजोरिटी, जो होगा नहीं, मेजोरिटी है अभी, कुडंट प्रूव इट्स मेजोरिटी। तो जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन में मेजोरिटी नहीं आएगा ना, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। और इन दिस केस अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, सो इन दिस केस प्रेसिडेंट जो है वो पावर गेन करता है। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि अब वो किसको बुलाए प्राइम मिनिस्टर्स के पोस्ट को होल्ड करने के लिए। तो इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर
गवर्नमेंट गिर जाती है, if the government is defeated, then president calls, उसको जो भी जिसको भी लगता है कि that person can form a stable government, president can call them, that individual leader to form the government. अगर ये फ्रेश इलेक्शन होता है, आफ्टर अ फ्रेश इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होता है ना, एक फ्रेश इलेक्शन हुआ और बहुत सारी पार्टीज ने वोट सिक्योर किया, तो बहुत सारे पार्टी ने वोट सिक्योर किया, बट किसी का मेजोरिटी वोट नहीं है, हंग असेंबली है, इट्स कंप्लीटली हंग असेंबली. इन दैट केस president can call the leader of coalition, to form the government. coalition के लीडर होंगे to form the government, उनको बुलाया जाएगा कि आप फॉर्म कीजिए. और प्रेसिडेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि he can call the leader of single largest party. He can call the leader of single largest party. या फिर प्रेसिडेंट कैन, 2-3 पार्टियां हैं, अगर इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ी हुई हैं, तो प्रेसिडेंट इन सारे पार्टीज के लीडर को बुला के बोलेंगे कि आप लोग कोलिशन कीजिए, आप लोग कोलिशन कीजिए एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. सो प्रेसिडेंट कैन इनवाइट द कोलिशन, लीडर ऑफ कोलिशन, President can invite the leader of coalitions to form, leader of coalitions or formed after election. President या फिर एक होता है पोस्ट कोalition होता है और एक प्री कोalition होता है, कल भी हमने पढ़ा था. प्री कोलिशन में होता है कि इलेक्शन होने से पहले ही उनका कोलिशन हो जाता है, गठबंधन हो जाता है ना, बहुत सारे पार्टी मिल जाते हैं एक साथ. और पोस्ट कोलिशन में होता है कि नहीं, वो सिचुएशन देखकर मिलते हैं, अरे मुझे मेजोरिटी नहीं मिली, चलो मैं किसी और पार्टी के साथ मिल जाता हूं, और दोनों पार्टी मिल करके, फॉर एग्जाम्पल हैपेंड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एनसीपी वाज नेवर द पार्टी ऑफ शिवसेना, शिवसेना की पार्टी थी नहीं एनसीपी, बाद में इन्होंने कोलिशन किया. शिवसेना वाज द पार्टी in coalition with the बीजेपी, तो शिवसेना ने बीजेपी से कोलिशंस को ब्रेक किया और एनसीपी से कोलिशंस को कनेक्ट किया और फिर जाकर के पार्टी फॉर्म किया. दैट वाज पोस्ट पोल कोलिशन, पोस्ट पोल अलायंस जिसको बोलते हैं, पोस्ट पोल अलायंस. सो इन केस अगर पोस्ट पोल अलायंस होता है और जो लीडर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट होते हैं, पोस्ट पोल में जो बनते हैं लीडर ऑफ कोलिशन, उनको इन्वाइट करती है. या फिर अगर मेजोरिटी नहीं है, हंग असेंबली है, तो किसी भी पार्टी के लार्जेस्ट सिंगल, उसमें से जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, कोई एक पार्टी तो होगा जो सबसे ज्यादा वोट लाया होगा, उसको कॉल कर सकती है. या फिर लीडर ऑफ कोलिशंस, प्री, ये जो पहला पॉइंट है, ये प्री अलायंस है, प्री अलायंस, प्री पोल अलायंस इसको बोलते हैं, प्री पोल अलायंस है ये. सो दिस इज इन दिस 3 कंडीशंस, प्रेसिडेंट acts with its discretionary power to form the government, to invite the persons. So prime minister is generally the leader of the majority party in Lok Sabha, but there have been instances when the prime minister had been the member of Rajya Sabha, है ना, जैसे इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, आईके गुजराल, अभी मैंने कहा मनमोहन सिंह, इवन मनमोहन सिंह वाज द मेंबर ऑफ राज्य सभा, वो लोकसभा में थे ही नहीं, है ना, बट उनको, he can be the leader of the majority party in Lok Sabha, no, he can even be the majority party in Rajya Sabha, वो आकर के राज्यसभा, लोकसभा में भी रिप्रेजेंट करेंगे. तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है. इंदिरा गांधी, आईके गुजराल, इवन मनमोहन सिंह थे. मनमोहन सिंह जो इलेक्शन लड़े वो हार गए, है ना, फिर उनको आसाम से इलेक्शन लड़वाया गया.
आसाम से उनको राज्यसभा का टिकट देकर के आसाम से जितवाया गया. Then he won the seat in Rajya Sabha from Assam, and then he became the prime minister. He was the prime minister, and within 6 months he won the seat from Rajya Sabha from Assam, and then he continued to be the prime minister. Okay, so this is about prime ministers. Take 5 minutes break. I'll continue it. So it's 25. So we will assemble it 30. एट 30 में हम आएंगे. सो विल कंटिन्यू. अभी थोड़ा सा और लेंगे, प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके.
Okay. Are you there? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So the Prime Minister or the President has the discretion to appoint the Prime Minister. किसी को भी Prime Minister बना सकता है if there is hung assembly. If there is hung assembly. So 1980 में एक केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट में. So in that case, Delhi High Court held that our constitution does not require a person to prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the Prime Minister. So Delhi High Court ये डील किया कि पहले उसको Prime Minister बना दीजिए and then ask to prove majority. First, that person should be appointed as the Prime Minister and that person will be asked to prove majority. This was the decision of Delhi High Court. दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन था. तो चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट जब थी 1979 में और वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी 1989 में, चंद्रशेखर आजाद की गवर्नमेंट थी 1989 में, ये सारे लोग, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल, और आई के गुजराल के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे, इवन इन सब को पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, देन लेटर ऑन आस्क्ड टू प्रूव मेजोरिटी प्रूव कीजिए. So court held that the person first to be appointed as the prime minister. जब इंदिरा गांधी, when Indira Gandhi was assassinated in 1984, so उस समय प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह. जेल सिंह appointed Rajiv Gandhi as the prime minister by ignoring the precedents of appointing a caretaker prime minister. अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अगर ऑफिस में रहते हुए मर जाता है या डेथ हो जाती है, किसी तरह से वो इनेबल हो जाते हैं फंक्शंस करने के लिए, तो इस केस में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है. उस समय ज्ञानी जेल सिंह ने ये नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया. और कुछ दिनों के बाद लेटर ऑन द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी anonymously elected Rajiv Gandhi as the leader of the house. However, if on the death of incumbent prime minister the ruling party elects a new leader and the president has no choice but to appoint him as the minister appoint करना पड़ता है. In 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस था. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि किसी को भी आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, एनी पर्सन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर. Any persons can be the prime minister. वो member हो नहीं हो, he can be the prime minister. Who is not the member of either house of the parliament. He can be the prime minister. But since the day he was appointed as the prime minister, within 6 months, he has to win election. He has to get elected. Within 6 months, he has to get elected from anywhere. And within 6 months, that person should become the member of any house. The member of any house, Lok Sabha or Rajya Sabha. Within 6 months, उसको member बनना पड़ेगा. और अगर within 6 months, he could not secure the member of any house, then he has to resign or he ceases to be the prime minister. He ceases to be the prime minister. Prime ministers के functions क्या हैं? Functions of prime minister. Article 78, हमने पहले we have already discussed. Article 78, it talks about it shall be the duty of the prime minister to communicate to the decisions or all decisions to the president of India about all administrative matters, legislative matters, or every affairs of the union, proposals, legislation, everything to the president. So he is duty bound to inform the president, communicate to president.
about all administrative matters. Prime Minister is duty bound to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals, legislations to President, and even President may call the Prime Minister to give such information. ये पहले भी हमने डिस्कस किए हैं. And if the President so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers regarding any matter on which a decision has been taken by the ministers, but which has not been considered by the Council of Ministers, Prime Minister has to inform to the President. ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पर कैबिनेट ने कुछ फैसला लिया और प्रेसिडेंट ने फोन किया, आज आपने क्या फैसला लिया बताइए. तो प्राइम मिनिस्टर हैज टू इन्फॉर्म अबाउट दैट मैटर टू प्रेसिडेंट इवन इफ दैट मैटर हैज नॉट गॉन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो आर्टिकल 78 इट डायरेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर्स टू वर्क. क्या करना है, क्या काम नहीं करना है. आर्टिकल 78 में फंक्शंस ऑफ इट टॉक्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. कुछ रिलेटेड आर्टिकल हैं प्राइम मिनिस्टर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट. कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 74, देखो प्राइम मिनिस्टर्स के लिए डायरेक्टली कोई आर्टिकल नहीं है. आर्टिकल 74 में ये बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो ये प्राइम मिनिस्टर यहां पर है ना. So there shall be a council of ministers headed by prime minister to aid and advise the president, who said in the exercise of his functions act in accordance with such advice. So आर्टिकल 74 ही ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होना चाहिए. आर्टिकल 75 it says that prime minister shall be appointed by the president. Prime minister shall be appointed by the president. Article 75 says that. And the other ministers shall appointed by the president on the advice of the prime minister. And the minister shall hold office during the pleasure of the president. And the council of ministers shall be collectively responsible to the house. This is article 75. So ये दोनों आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर्स का रेफरेंस आता है. इन दोनों आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस आता है. एंड हेंस देयर शैल बी अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स. फिर आर्टिकल 78 में उनके फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू गॉट द पॉइंट? Two things you need to be clear here. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में डिफरेंसेस क्या हैं? आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ वाइडर बॉडी, बड़ा बॉडी होता है. इसमें 60 to 70 मिनिस्टर्स हो सकते हैं. और कैबिनेट जो होता है इट्स अ स्मॉलर बॉडी. मैक्सिमम 15 to 20 मिनिस्टर्स हो सकते हैं. 15 to 20 मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऑल 3 कैटेगरीज के मिनिस्टर्स होते हैं. दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स. इन तीनों कैटेगरी के मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं. कैबिनेट में ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. इसलिए इसको कैबिनेट में कहा जाता है कि इट इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे आ गए ना, तो ओनली कैबिनेट को हम कैबिनेट में लेते हैं, कैबिनेट मीटिंग मिनिस्ट्रीज में लेते हैं. तो कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट मीट. Council of Ministers does not meet as a body to transact government business. It has no collective functions. Council of Ministers का collective functions नहीं है.
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बट कलेक्टिव फंक्शंस नहीं है. कैबिनेट इज अ बॉडी एंड इट मीट्स, ये बैठती है, मीटिंग होती है फ्रीक्वेंटली एंड यूजुअली वंस इन अ वीक टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस. Thus, this cabinet is a collective functions. कैबिनेट जो है कलेक्टिव फंक्शंस है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज वेस्टेड विथ ऑल पावर्स, सभी पावर्स होते हैं. बट ये जो पावर्स है ना, ये थियरी में है, प्रैक्टिकल सेंस में नहीं है. कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बॉडी नहीं, एक नाम है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए. एंड हेंस जिनके पास जितने भी पावर हैं, दैट पावर इज अ थियरी. बट इनके पास जितने भी पावर हैं, कैबिनेट के पास जितने भी पावर हैं, दोस पावर्स आर रियल, प्रैक्टिकल. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शंस एज अ डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट. So whatever the cabinet takes decisions, council of minister has to function. Cabinet directs the council of ministers. ये cabinet जो है council of ministers को direct करता है to take decisions upon any policies, and that decisions are binding on the ministries or ministers. Council of ministers implements the decision taken by the cabinet, and the cabinet supervises the implementation of its decision by the council of ministers. Council of ministers is a constitutional body dealt in detail by article 74 और 75 में हमने डिस्कस किया. council of ministers is a constitutional body. Its size and classifications are not mentioned in the constitution. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज कितना बड़ा होगा, क्लासिफिकेशन कौन कौन इसमें आएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ नहीं है. एंड इट्स साइज इज डिटरमाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंसेस ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड इनटू अ 3-tier बॉडी बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसा ब्रिटेन में होता था, हमने वैसा ही अडॉप्ट किया है यहाँ पर भी. So it has, however, got a legislative sanctions. Thus, the salaries, allowances, all this defines minister as the member of council of ministers by whatever name it be called, and includes deputy minister, everyone in the council of ministers. But cabinet में, cabinet जो है, cabinet is a word inserted only under article 352 of the constitution. Under article 352 of the constitution by 44th constitutional amendment act. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं था. So now article 352 defines that the cabinet, saying that it is the council consisting of prime minister and other ministers of cabinet rank appointed under article 75, and does not describe its powers and functions. कैबिनेट का पावर एंड फंक्शंस डिस्क्राइब नहीं करता है. So in other words, its role or in our politico administrative scenario system, this all depend on the whims and fancies of the prime ministers. Council of ministers is collectively responsible to the parliament, but cabinet enforces collective responsible of the council of ministers to the lower house, that is Lok Sabha. So this is the difference between council of ministers and cabinet. So we have completed the prime minister. Now coming to the last topic, that is attorney general of India. ये last नहीं है, second last है. Attorney general of India. I'll take the new page. Attorney General of India under Article 76. Article 76 Attorney General से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो अंडर आर्टिकल 76 में दिए हुए हैं.
It talks about Attorney General of India is the first law officer of the country. First law officer. मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई केस होता है, उस केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ही इज द एडवोकेट. सेंटर में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं और स्टेट में एडवोकेट जनरल बोलते हैं. स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर को एडवोकेट जनरल बोलते हैं. एडवोकेट जनरल बोलते हैं स्टेट में. So under Article 76, everything about the Attorney General was defined, and Attorney General discharges 3 important functions. यानी इनके 3 important responsibilities हैं. Attorney General has 3 important responsibilities. First, as a legal advisor of the government, and advises the government on all legal matters as and when need arises and as and when requires. Second, Attorney General का second functions है to represent as a government lawyer in important cases in court. To represent as government lawyer in important cases in court. In important cases in court. Third number में any other legal work अगर उसको असाइन किया जाता है by the president, any other legal work assigned by the president, any other legal work assigned by the president under constitution. Any other legal work assigned by the president under constitution. Any other legal work assigned by the president under constitution. So these are the 3 important functions of Attorney General of India, है ना. तो Attorney General वो होते हैं, who has drawn this? Don't write on the screen, Ankit. So Attorney General of India is appointed by the president, and a person who is eligible to be appointed as a judge of the Supreme Court can be appointed as the Attorney General of India. तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जिनका क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के लायक है ना, क्वालिफिकेशन qualified to be Supreme Court judge, that person can be appointed as the Attorney General of India by president. By president के president उसको अपॉइंट करता है. अगर हम अटॉर्नी जनरल के ड्यूटी को बहुत क्लोजली असाइन करें, अगर एग्जामिन करें बहुत क्लोज होकर के, वेरी क्लोज, अगर उसके नेचर ऑफ ड्यूटी को एग्जामिन करें, which Attorney General of India has to perform, certainly it can be concluded that all of them are need based. वो जितने भी functions deliver करता है Attorney General of India, all these functions are need based. That is the reason Attorney General of India is not entitled for any salary. Attorney General of India को कोई सैलरी नहीं दिया जाता है. Attorney General of India को रेम्यूनरेशन दिए जाते हैं, है ना. और वो रेम्यूनरेशन, Sir, I didn't get the point, sir. हाँ, yes. What? I didn't get that. You used like term something. What base? I didn't get that base. What is that base? Base? I couldn't get that. I said attorney. Like
Yes. Like the function of some like attorney general, and you just told something. I didn't get that. देखो, अगर सी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं, गवर्नमेंट इज द पार्टी इन मेनी केसेस, एंड एवरीबडी, many persons has the grievances against the government, and hence that person lodges the complaint case against the government, and on behalf of the government there should be someone to represent the cases. अगर हमें कोई अरेस्ट करता है, then we hire an advocate to represent our case. On behalf of the government, this attorney general is the advocate. Attorney general is the person who discusses or fights the cases in the court, who represents the government in different cases in the court. So attorney general has three functions: to act as the law officer of the central government, to act as the law officer of the central government, act as a legal advisor or legal advisor also, and legal representative of the government in court of law, and other legal work if he is being assigned by the president of India, legal work, I said legal work, then he has to deliver. तो कोर्ट में अगर कोई केसेस होते हैं, एनी केसेस, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस केस को रिप्रेजेंट करता है केस कोर्ट में जाकर के. और अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है अटॉर्नी जनरल. एनी पर्सन कैन बी द अटॉर्नी जनरल, बट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी द सुप्रीम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. He should be qualified to be the judge of Supreme Court, and he is being appointed by the president. President उसको appoint करता है. That is the Attorney General of India. So if we closely relate, closely look after the nature of the job performed by Attorney General of India, we can conclude that whatever the function he performs, जो भी वो काम करता है, all work are need based. जो काम का जरूरत है वही काम वो करते हैं. All them are need based. That is why the reason that Attorney General of India is not entitled for salary. तो जैसा काम है उसके अनुसार उनको सैलरी दिया जाता है. कोई फिक्स सैलरी नहीं है उनका, क्योंकि उनके वर्क फिक्स नहीं है, लिमिटेड वर्क नहीं है कि इतना ही काम है, इतना काम कीजिए, इतना सैलरी दिया जाएगा. नो, हिज वर्क कैन इंक्रीज, हिज वर्क कैन डिक्रीज, एंड हेंस he is not entitled for salary, but he is entitled for remunerations. जितना काम उतना पैसा, and that remuneration is fixed by the President of India. So at the time of appointment only, his remuneration is being fixed, and generally his salary or remuneration is equivalent to the salary of Supreme Court, judge of Supreme Court. Salary of the judge of Supreme Court. समझ में आया ममता? Did you get the point? Yes, sir. Now clear, sir. Clear. So he is entitled for the salary equal to the salary of judge of Supreme Court. Supreme Court के जज के सैलरी के इक्वल में सैलरी मिलती है, बट सैलरी नहीं, इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन. फिक्स्ड सैलरी नहीं है इनकी, बिकॉज हिज वर्क इज नीड बेस्ड. वट एवर द वर्क इज देयर, अकॉर्डिंगली हिज मनी और हिज रेम्यूनरेशन विल बी डिस्पैच्ड. इन ब्रिटेन में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल इज पार्ट ऑफ द कैबिनेट का पार्ट होता है. इन इंडिया अटॉर्नी जनरल इज मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट, नॉट द मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट. इंडिया में अटॉर्नी जनरल यूनियन कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है, ब्रिटेन में होता है. बट इंडिया में दो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट, ही बिहेव्स लाइक अ कैबिनेट मेंबर ऑन सम ओकेजन्स, है ना, कैबिनेट मेंबर्स के जैसे बिहेव करता है. तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कोई भी हाउस में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में अगर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है तो ही कैन सीट देयर, वो बैठ सकता है वहां पर. ये डिस्कस, इवन ही कैन डिस्कस, बट कैन नॉट वोट.
वोट नहीं कर सकता है ये। He has the right to speak. He has the right to speak in both the houses of parliament. अगर कोई ऐसा केस हो गया, रिलेटेड केस है, उसको प्रोसीडिंग्स में बैठना है, हाउस के प्रोसीडिंग्स में बैठने हैं, तो वो बैठ सकता है, वो डिस्कस भी कर सकता है, एवरीथिंग ही कैन डिस्कस, बट वोट नहीं कर सकता है, कैन नॉट वोट, बट ही कैन डिस्कस, ही हैज द राइट टू स्पीक एंड ही हैज द राइट टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, both house of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Right to vote नहीं है because he is not the member of house, इसलिए उसके पास right to vote नहीं है, but उसके पास right to speak है, वो डिस्कस कर सकता है, सुन सकता है, डिस्कस कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वोट कैन नॉट, ही कैन नॉट वोट दैट बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, वोट नहीं कर सकता है वो। अभी जो लोकसभा एमपीज होते हैं ना, लोकसभा के एमपीज होते हैं, अगर ये राज्यसभा में जाते हैं, ही कैन नॉट वोट इन द राज्यसभा, कैन नॉट वोट इन द राज्यसभा। जैसे मैंने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी द लीडर ऑफ लोकसभा, बट ऐसे कई लोग हुए हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनको राज्यसभा में भी बैठना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं तो ये राज्यसभा में भी बैठेंगे और ये लोकसभा में भी बैठेंगे, लोकसभा में भी रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ लोकसभा। तो उस केस में ये दोनों हाउस में बैठते हैं, राज्यसभा में भी बैठते हैं, लोकसभा में भी बैठते हैं। बट इफ ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा और वोटिंग लोकसभा में हो रही है, ही कैन नॉट वोट इन लोकसभा। राज्यसभा में वोटिंग हो रही है, ही कैन वोट, ही कैन वोट, लोकसभा में ही कैन नॉट वोट। तो जो पर्सन जिस हाउस का मेंबर होगा उसी हाउस में वो वोट कर सकता है, दूसरे हाउस में वोट नहीं कर सकता है। और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो किसी भी हाउस का मेंबर है ही नहीं, तो ही कैन नॉट वोट, बट ही हैज द राइट टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स, इवन ही हैज द राइट टू स्पीक, ही हैज द राइट टू डिस्कस, he has the right to discuss as a part of healthy precedence। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी प्रेसिडेंस, अटॉर्नी जनरल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशंस टू द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। मतलब जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है ना, अभी जैसे 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, तो अटॉर्नी जनरल अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को दे देते हैं, क्योंकि अगर नए गवर्नमेंट जब आएंगे, नए गवर्नमेंट अपना अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करेंगे, अपने चॉइस का अपॉइंट करेंगे अटॉर्नी जनरल। ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों हाउस में तो बैठ सकते हैं। ही ऑल्सो हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, all courts, court of law, all court of India. He can sit and participate, can be the audience, can be the audience of all courts of India। इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं सब में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, डिस्कस, यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ही कैन बी द ऑडियंस। हाँ, अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सभी कोर्ट में ही कैन डिस्कस टू, फ्रॉम रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट टू। अगर किसी भी केस में अगर उसको लगता है कि मुझे बैठना चाहिए, he can go and sit simply, he can be the audience irrespective of the manner in which the trial is going on। किस मैटर में ट्रायल चल रहा है, doesn't matter, if he wants he can be the audience in that court, any court of India, any court of India। So this is about Attorney General of India। Do you have any question? Do you have any questions? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के इनके असिस्टेंट होते हैं, कुछ इनके असिस्टेंट होते हैं जिनको सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है। सॉलिसिटर जनरल और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सॉलिसिटर जनरल और एंड असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल
to assist the Attorney General of India. तो इन नॉर्मल केसेस में 2 सोलिसिटर जनरल होते हैं और 4 असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल होते हैं. तो इसको इसलिए कहा जाए, इसलिए इनको अपॉइंट किया जाता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये सिर्फ अकेले हैं, एक आदमी है, एक पर्सन ही कैनॉट रिप्रेजेंट इन वेरियस कोर्ट्स, वेरियस केसेस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड हेंस इन सब लोगों को भी अपॉइंट किया जाता है. सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2 मेंबर होते हैं और असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल होते हैं 4, ओनली फॉर मेकिंग अपीयरेंस इन गवर्नमेंट इन कोर्ट एज अ गवर्नमेंट लॉयर इन. ठीक है. तो under article 77 talks about the conduct of business of the government of India. Article 77 talks about the conduct of business of government of India, और article 78 ये प्राइम मिनिस्टर्स का ड्यूटी बताता है. प्राइम मिनिस्टर्स का ड्यूटी क्या है टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, सारी चीजों को इन्फॉर्म करना. So that is about Attorney General of India. Any questions? You have any question? You have any questions? Anybody has any question? So there is no questions, right? So tomorrow we'll discuss about the parliament. Okay. Tomorrow we'll discuss about the parliament, and timing will be the same, 7 p.m. Time 7 p.m. onwards. Okay. So at least 7 to 9 or 9:30 you have to be free. 7 to 9 or 9:30. Sometimes it may extend to 9:30. Otherwise 7 to 9 I'll try to finish most of the time. So you have to be present. So is there any questions, Dipankar? No, sir. Okay. Sonam, can you hear me? No. So you should attend all the classes. If you miss some of the classes, you won't be able to understand. Okay, so attend all the classes. Sonam, Vidhi, even Dipankar, Arnav, Ankit, everyone attend the classes. All the classes you need to attend. Otherwise, you won't be able to understand the things. Sir, I've missed some classes, so when will be the YouTube link available? Sorry? I've missed some classes, sir, so when will be the YouTube link available? I will upload all the YouTube's videos today itself. It will be uploaded. I have uploaded many today by today itself. More 5-6 are there. I'll upload it by today only. And you just subscribe our channel so that whenever I post anything new, it will be, you will get the message in your inbox, in your mobile. Okay, sir. So subscribe it. Subscribe our channel, Noble Path PNRI. Noble Path PNRI. You just subscribe it. You will get all informations. Whenever I post the video, anything, you will get the update in your mobile. So I'll post all the videos by today itself. So if you do not have any questions for today, I'll close it here and we'll meet tomorrow. Do you have any question? Most from the